वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ सीयू कास्ट। मैं हूं आप सबकी होस्ट आरजू सलाथिया एंड फॉर दिस एपिसोड वी हैव नन अदर देन एडवाइजर टू द चांसलर प्रोफेसर एंड डॉक्टर आर एस बाबा जी। और इस एपिसोड में हम उनसे बात करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ साथ एकेडमिक्स में उनकी जर्नी की। तो आइए बात करते हैं आर एस बाबा जी से। वेलकम टू द शो सर एंड थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम निकाल के हमारे साथ यहाँ बातचीत करने आए। एंड बिफोर वी स्टार्ट समथिंग और कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात करें, मैं उससे पहले पूछना चाहती हूँ आपसे कि एकेडमिक्स की तरफ या एजुकेशन की तरफ ही आपने चीज़ें परस्यू करने का कैसे सोचा, लाइक हाउ इट स्टार्टेड? Actually, it's very interesting, I would say, story. ओके। I got some excellent teachers, and I very firmly believe that whatever we are today, anybody, whatever he or she is in life, it is because of three sets of people. The first is the parent who bring you in this world. The second is the teachers, who are second parents, who shape you, who create a structure out of a child. And third, of course, is society. Society creates these institutions, universities, colleges, schools, etc. So in my case, I remember when I was in 7th standard, I got teachers who appreciated every child individually. And I remember one such teacher's name, Sir Balbir Singh. He was BSc, non-medical. And he used to watch every child, what he or she is doing. So when I was in 7th standard, my father was my first teacher. I was very good in mathematics, geometry, little bit English also, but not that much mathematics. So he saw some potential in me. And I still remember, and I was in a government school, जहाँ पे ज़मीन पे बैठते थे, टाट लेके जाते थे, ठीक। और बाहर ग्राउंड में क्लासेस लगती थी, ब्लैक बोर्ड होता था उस पर। अक्सर हमारे दादा दादी भी कहानियाँ सुनाया करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज क्लास तुम पढ़ाओगे। ओके। When I was in 7th standard, look at those times, not today. Yeah. Today, the relation between teacher and students is different. या We encourage students to participate in various things. At that time, it wasn't. It was an exception. The whole class was surprised. I was surprised. So he asked me कि आप ये theorem solve करोगे for me on the board. So initially I hesitated, but then I was thrilled also. So that day I decided that I will do BSc and I will become a teacher. And at the top of it, when it was our outgoing photograph, farewell photograph, because it was a middle school. So middle school, I come from a lower middle class family. तो मैं शॉर्ट्स और शर्ट पहन के गया। जी। एक तो लड़कों ने जो अच्छे घरों से थे उन्होंने टाई लगाई हुई थी। तो दिस जेंटलमैन बलबीर सिंह, ही टुक ऑफ हिज टाई और मेरे डगा दी। ओह ग्रेट। So how can you forget such teachers? बिल्कुल। So that was the day when I decided that I'll be a teacher, and I'll be a teacher like him, ओके। who will care about the students like their own children. And I'm sure the way I have conducted myself during the last almost 50 years, some students don't like it because it's too much interference, like a parent. But I do my duty. So that is how I was initiated into it. And it was then further compounded and confirmed by some other teachers which I got along the journey. बट ये भी आई थिंक ज़रूरी होता है कभी कभी टोकना टीचर्स होता का। यही है एक्चुअली, हम प्रेरित होते हैं, वी आर इंस्पायर्ड बाय सम पीपल इन आवर लाइफ। बिल्कुल। Apart from your parents, you can be inspired by your friends, you can be inspired by some people whom you meet accidentally in your life, ट्रू। you can be inspired by some speaker. और मैं ये भी बताऊं कि I heard some great orators along my journey, ट्रू। and each time I learned something, and somewhere inside me it was that okay, if not like him, but I'm going to be something like this person. Yeah. So it makes you a lifelong learner. It gives you a lot of confidence, and it gives you a purpose of life. So I believe more than learning that we do in our class or in our school, it is self-learning.
जी. which is of immense importance for the growth of a person, Yes. professional growth or otherwise. So, this is why, of course, my father was a teacher initially, then he left teaching and he was a gold medalist of his time, then he did matriculation and that's it. सर टॉकिंग अबाउट योर टीचिंग करियर, तो ये तो हम सब जानते हैं कि आप वेरियस सिग्निफिकेंट पोजीशंस पे रहे हैं थ्रू आउट योर जर्नी, और टीचिंग को और अपने रिसर्च के काम को मैनेज करना कैसे आप मतलब कर लेते हो एक बखूबी उस रोल को अदा करना? देखिए मैं अब थोड़ा सा बताता हूँ, मेरे ख्याल इट इज़ रेलेवेंट बिकॉज द ऑडियंस विल बी हैप्पी टू नो दैट आई स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी ऑल्सो व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड. ओके. उसी वक्त जब मैं उस ग्रेट टीचर को मिला, तो एवर सिंस दैट आई प्लेड हॉकी टिल माई PhD. तो वो जो लगभग 9 साल थे, फॉर इन दोज 9 years एंड थ्रू आउट माई करियर टिल आई वाज ए स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट भी तभी तक था मैंने कभी कोई क्लास मिस नहीं की, लेकिन कभी ग्राउंड भी मिस नहीं की. अब कई बार कई लोग पूछते हैं मेरे से कि ये कैसे पॉसिबल है, आप ग्राउंड भी मिस नहीं करते हो, क्लास भी मिस नहीं करते हो, तो फिर आप एंजॉय नहीं करते होगे. तो हाँ, इस तरह से इट इज़ येस, बिकॉज इन दोज 9 years आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सीइंग मूवीज. बाय द वे, एट दैट टाइम मूवी वॉज द ओनली एंटरटेनमेंट. या. एंड आई यूज टू सी फर्स्ट शो नॉर्मली, खासतौर पे अच्छी मूवीज़ का. लेकिन मैंने फिर क्या किया कि क्योंकि मैं खेलना शुरू हो गया था, तो उस वक्त सैटरडे को शो लगते थे 12 से 3 या 10 से 12, तो मैं वो शो देखता था या संडे को देखता था. ना शाम को मैटनी शो कभी नहीं देखा, क्योंकि ग्राउंड मिस करनी पड़ती, और दिन में नहीं देख सकते ड्यूरिंग द वीक, तो क्लास मिस करनी पड़ सकती. सो व्हाट आई डिड वाज, एंड सेकेंडली देयर वर फैमिली फंक्शंस, वी वर ए लार्ज फैमिली, तो मैंने वो कभी अटेंड नहीं किए. आई डेंट हैव मच इंटरेस्ट इन दैट. और दूसरा ये कि जैसे मैं ड्यूरिंग माई जर्नी आई गॉट गोल्ड मेडल इन माई MSc, आई गॉट यूनिवर्सिटी रोल ऑफ ऑनर इन स्पोर्ट्स, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज टीम. तो कई लोग वो यहाँ पे लगा के बैच घूमने का शौक़ रखते हैं, मैं वो शौक़ नहीं रखता था. तो मेरा जो बैच में मैं लगाता था वो यूनिवर्सिटी में ही लगाता था, लगा के ये नहीं है कि बाज़ार में घूमना है या कहीं जाना है. तो समवेयर यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ एवरीथिंग दैट यू गेट इन योर लाइफ. मेरा पहला मैसेज सबको ये है कि नथिंग कम्स फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड. ट्रू. इफ़ यू वांट टू बी ए गुड सन, you have to be obedient. बिल्कुल. You have to follow the footsteps of your parents. You will have to keep your parents happy. If you want to be a good friend, you will have to sacrifice some of your own time and give time to friendship. If you want to get married, you have to give away your independence and freedom and do some compromise. Otherwise, you will not be a happily married person. If you want to be a teacher, you have to put yourself on a pedestal of respect so that you come up to the expectation of your students. You can't behave like a street person. So all this, it comes, everything that comes to you, it has a price. And the interesting thing, or the most important thing, is that that price is not money. That price is something of your own which you will sacrifice. And most times, this is sacrificing your comfort zone. You have to come up your comfort zone and you have to control yourself. And from there it flows that I think discipline is the key word in success in your life. तो जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा. तो अगर आप ग्राउंड मिस करोगे तो फिर आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते. अगर आप गेम मिस करोगे तो, और मैं ये कई बार कहता हूँ तो कि मेरी जो लाइफ की जर्नी है और जो मेरी स्टोरी है, it proves that yes, it is possible. You can do it. You can do it. And the only thing is you have to plan it well and give your best. And one should try to be an ideal person in all its roles.
तो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बच्चे हो, बैक सर यहाँ से आपने एक चीज़ बोली कि आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एज अ स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट, है ना. सो बात करते हैं स्टूडेंट एथिक्स की. तो आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट एथिक्स क्या होते हैं या क्या होने चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट को पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट क्यों है, स्टूडेंट का लाइफ में एम क्या है, जी. आप क्यों पढ़ने आते हैं. मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ, जब मैं एड्रेस करता हूँ, सबसे पहला सवाल मेरा ये होता है कि बेटा, वाई यू आर इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट. एंड आई एम श्योर नॉट मेनी स्टूडेंट्स हैव एवर थॉट अबाउट इट बिल्कुल. इंडिपेंडेंटली. वैसे तो हम पूछेंगे तो होता है कि जी मैं पढ़ने आया हूँ ये वो, लेकिन पढ़ाई फॉर व्हाट. योर पेरेंट्स आर स्पेंडिंग मनी ऑन यू फॉर व्हाट. You are spending good 3-4 years of your life which will never come back again. So what? So if you try to answer these questions, then a few things will flow. The first thing, as I said, is discipline. Student ethics का सबसे बड़ा पार्ट, वो स्टूडेंट का नहीं, लाइफ में वैसे भी एथिक्स का जो पहला लेसन है वो ये है, डिसिप्लिन होना चाहिए उसमें. अब डिसिप्लिन की भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. डिसिप्लिन मीन्स गोइंग टू द क्लास ऑन टाइम, coming out of the class on time, wearing uniform on a day. Is that only discipline? To my mind, discipline means disciplining your mind. और हमारे देश की तो जो परंपरा है, जो वैल्यूज़ हैं, उसमें मुझे याद है कि संस्कृत का श्लोक मेरे फादर सुनाया करते थे हमें बचपन में कि ब्रह्मचर्येन तपसा देवम मृत्युमुपागनित. ब्रह्मचर्य के बल से देवताओं ने मृत्यु पर विजय पा ली. अब ये ब्रह्मचर्य जो है, इसका असल में मतलब डिसिप्लिन है. टू डिसिप्लिन योर माइंड, टू ट्रेन योर माइंड. वो जो क्लास लगानी है वो बॉडी की ट्रेनिंग है कि आप टाइम पे उठेंगे, टाइम पे चले जाएंगे, लेकिन आप क्लास में बैठ के टीचर क्या पढ़ा रहा है आपका ध्यान ही नहीं है. सो डिसिप्लिन एक्चुअली इज discipline your body, your mind, your thoughts, everything, so that you are focused on what you want to be in your life. So सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहला एथिक्स ये है कि a student must know what I want to be in my life. बिल्कुल. What's my aspiration. और उसे मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चे लिख के रख लें जब वो किसी यूनिवर्सिटी में जाएं. स्कूल तक चलिए, आपको कई बार क्लैरिटी नहीं होती कि मैंने क्या करना है. यू आर डूइंग वन डिसिप्लिन, बस वंस यू हैव चूजन ए फील्ड, तो उसके बाद उसे अपने सामने लिख के रखना चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बी. फॉर एग्जांपल, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या मैं मीडिया स्टडी कर रहा हूँ, तो मीडिया स्टडीज़ के बाद मैंने क्या करना है. अब आपके पास ऑप्शन है. लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने जॉब करनी है, तो कहाँ जॉब करनी है. जॉब तो एक वर्नाकुलर प्रेस में भी हो सकती है, जॉब हिंदुस्तान टाइम्स में भी हो सकती है, जॉब आप इंडिया टुडे में हो सकती है, जॉब वाशिंगटन पोस्ट में हो सकती है. तो मुझे पहले सोचना पड़ेगा कि मैं बनना क्या चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से फिर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वो करना चाहिए. तो इस सब को सामने रख के वो मेरा डिसिप्लिन क्रिएट होगा कि मैंने अपने माइंड को, अपने टाइम को किस तरह से ट्रेन करना. सो पहला काम है डिसिप्लिन इन इट्स टोटलिटी. सेकेंड इज वंस यू डिसाइड, तो स्टूडेंट जिसमें डेडिकेशन नहीं है, वन शुड डेडिकेट वन सेल्फ टू द वर्क, टू द डिसिप्लिन, टू योर एम. और मेरा मैसेज ये रहेगा कि एथिक्स ये है कि टू डेडिकेट योर सेल्फ टू योर सेल्फ. अब डेडिकेट की भी मैं एग्जांपल देता हूँ लोगों को कि जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं, समर्पयामि, समर्पण. उसका अर्थ क्या होता है कि मैंने अपने सारे वस्त्र दान कर दिए, मैंने अन्न दान कर दिया. उसका अर्थ क्या है? अपने आप को. उसका अर्थ क्या है कि मेरे पास नहीं है, मेरा नहीं है, ये सब तुम्हारा है. तो जब आप अपने आप को डेडिकेट कर देते हो तो यू लूज द राइट टू स्पॉइल योरसेल्फ. So my definition of dedication is that you dedicate yourself, to your aspiration, to your aim in life. Right. Which means that you lose the right to spoil yourself. And when I lose the right to spoil myself, nobody on earth can stop me.
So my dedication to my parents is automatic. My dedication to my nation is automatic. So I dedicate to all those good things which help me in achieve what I want to do in my life. और तीसरा है diligence. अब diligence का मतलब ये है everybody is born intelligent. Yeah. God forbid some people have some problems, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन they too have some kind of intelligence. It may not be directly related to education or numbers or anything, but there is some Valid. hidden intelligence. अब सवाल यह है कि उस इंटेलिजेंस को यूज़ कैसे करना है. आप देख रहे हैं कुछ लोग आपके जो हैक करते हैं मोबाइल्स, वो भी इंटेलिजेंस है. दे आर वेरी इंटेलिजेंट बट दे आर मिस यूजिंग देयर इंटेलिजेंस. सो डिलीजेंस इज यूजिंग योर इंटेलिजेंस फॉर द कॉज for which you're working. So as a student, I will use my intelligence to achieve my goals as a student. When I become an employee, I will try to use my intelligence to protect the interest of my institution, my work, my aim, whatever work has been given to me. I will use my intelligence to protect and help my family. Then if I have children, I'll try to use my intelligence to come up to the expectation of my children to achieve something of which they feel proud. So ultimately, I think student ethic is to make everybody around you proud of you. If my colleagues are proud of me, my parents are proud of me, my teachers are proud of me, my university is proud of me, or college is proud of me, I think I have fulfilled my ethics. अब इसमें छोटे छोटे एथिक्स बहुत सारे होंगे, इंटेग्रिटी है, वो सारी दे ऑटोमेटिकली फॉल इन. वंस आई डेडिकेट माई सेल्फ, तो मैं कोई गलत करूँगा ही नहीं. मैं किसी के साथ कोई धोखा नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हेरा फेरी नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा. तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं. तो इसके बाद जो इसका रूल ऑफ थंब है कि कैसे ये अचीव किया जाए, वो है कि 3 चीज़ें मैं बोलता हूँ. फर्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, जी. सेकंड इज सेल्फ डिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस, एंड थर्ड इज सेल्फ एस्टीम. ये लाइफ के लिए है, ये केवल स्टूडेंट के लिए नहीं है, लाइफ के लिए है. अब कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आप भी स्टूडेंट हैं, जी. तो सभी जो सुनने वाले हैं जानते हैं कि मैं कभी किसी जगह पे भी हूँ, आज आपके सामने बैठा हूँ, तो मैं अगर कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूँ? इफ़ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, वाई एम नॉट कॉन्फिडेंट? तो कॉन्फिडेंट वो व्यक्ति होता है जो उस चीज़ के पास ज्ञान है, जो सोचता है काम करने से पहले, जिसने मेहनत की है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, जो कंटिन्यूस और लर्नर है. अब कोई कहीं डिस्कशन हो रहा है तो कई बार हम बात नहीं कर पाते, कई बार स्टेज पे चले जाते हैं तो बोल नहीं पाते. तो बोल ना पाने के 2 कारण हो सकते हैं. एक तो लैंग्वेज हो सकती है कि मुझे आती ही नहीं है जिस भाषा में मैं बात करूं, लेकिन उससे ज़्यादा आमतौर पे क्या होता है कि मेरे पास वोकेबलरी और नॉलेज नहीं होती. जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ उस विषय का जॉर्गन क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, मुझे नहीं पता. तो फिर मैं क्या बोलूँगा वहाँ पे? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ए पर्टिकुलर फील्ड, मैं नहीं कहता कि आप हर जगह सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ए फील्ड कम्स थ्रू हार्ड वर्क, शेयर हार्ड वर्क एंड परफेक्ट नॉलेज. आप जिस विषय पे भी बात करते हैं, जो पढ़ रहे हैं आप, उसमें आपकी परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए. अब क्लास में पढ़ा दिया गया, हम कई बार वो मान लेते हैं कि जो मेरे अध्यापक ने पढ़ाया वो परफेक्ट हो गया बस. जी, अक्सर ऐसा होता है. तो वो तो अध्यापक को जितना पता वो है ना, तो अध्यापक के अलावा भी बहुत ज्ञान है, तो क्या हम उसकी प्राप्ति के कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं? तो वो बात हो गई. अब जब आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, आपने बहुत मेहनत कर ली, तो फिर ये होना चाहिए कि मेरी डिपेंडेंस कम हो जाए दूसरों पे, चाहे वो अध्यापक हो. मेरा मानना है कि कम से कम 30% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको अध्यापकों की ज़रूरत नहीं होती. अगर अध्यापक ना भी हो, दे आर सो मोटिवेटेड, उनमें इतनी क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है कि वो खुद पढ़ते रहते हैं हर वक्त. जी. तो वो कई बार क्लास में ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं जो अनकंफर्टेबल होते हैं टीचर के लिए. हाँ. तो इसलिए हमें वो बनना है. तो जो सेल्फ रिलायंस है, अब ये सेल्फ रिलायंस होगी क्लास की. अब सेल्फ रिलायंस, अब घर में एथिक्स की बात है वो भी, कि बहुत सारे घरों में नौकर तो होते नहीं, लेकिन हम घर जाते हैं तो कपड़े माता पिता से धुलवाते हैं, अपने बड़े भाई बहन से धुलवाते हैं. अपना वॉशरूम साफ नहीं करते, वॉश बेसिन साफ नहीं करते, वो माता करती है या पिता करता है. क्यों? अब देखिए,
सेल्फ रिलायंस का मतलब तो ये है कि मैं खुद सब कुछ करूँगा, और इसमें शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि मेरे घर में मैं तो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, आई हैव हैड ए सर्वेंट, बट आई वॉश माई ओन वॉशरूम। ये अपनी सीट भी आप साफ करते हो, अपना वॉश बेसिन भी आप साफ, मुझे तसल्ली नहीं होती। मैं होटल में जाता हूँ, बहुत ट्रैवल किया हूँ, 199 यूनिवर्सिटी विजिट की है, 54 देश देखे, 136 शहर देखे हैं। ग्रेट। और मैं जब होटल में जाता हूँ, जब छोड़ता हूँ, मेरा वॉशरूम वैसा ही होता है। ऑफ कोर्स पानी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन मैं उसको क्लीन रखता हूँ। 3 दिन मैंने रहना है, 3 दिन मैं, मेरी जिम्मेवारी है उसको साफ रखना, तो उससे आपको एक तसल्ली मिलती है। सो सेल्फ रिलायंस इन द ओवरऑल कंटेक्स्ट शुड बी अनदर एथिक वी शुड ट्राई टू एक्वायर। और जब ये दोनों आ जाएंगी ना, फिर आप में इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप लोगों को बता सकोगे कि भाई ऐसा करो। जब मैं खुद वो प्रैक्टिस नहीं करता हूँ ना, तो फिर मैं दूसरों को उतने विश्वास के साथ बता नहीं सकता हूँ, कह नहीं सकता हूँ, गाइड नहीं कर सकता हूँ। तो सेल्फ एस्टीम गुरु नानक में भी थी, महात्मा गांधी में थी, बड़े बड़े लोगों ने सेल्फ एस्टीम प्राप्त किए। आप उनकी लाइफ देखिए, किसी बड़े आदमी की जो आपको उपदेश देता रहा, जिसकी प्रीचिंग्स हम मानते हैं, चाहे गुरु नानक हैं, उनका अगर लाइफ देखेंगे तो इसी तरह से शुरू हुआ। पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद वो ऐसे थे कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे। ये नहीं है कि मुझे इसी प्रकार का खाना है, मुझे उससे ना मिले तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और फिर जब ये स्थिति आ जाती है तो फिर वो सेल्फ एस्टीम आ जाती है उसमें। तो विद्यार्थी हो चाहे कोई, विद्यार्थी तो एक पड़ाव है, इट्स वन स्टेज इन लाइफ। अल्टीमेटली हम सभी को वही बनना है। देखिए, जो ज्ञान किसी के काम नहीं आ सका, जो मुझे सेल्फ रिलायंट नहीं बना सका, और जो मैं दूसरों को बांट नहीं सका, उसका फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। तो उसके लिए ये तीनों स्टेजेस जरूरी हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि, और ये हर व्यक्ति कर सकता है, जी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आपको ना तो पैसा चाहिए ना कुछ और चाहिए, सिर्फ अपने आप को कुछ थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर वर्क। और ये सब करने के लिए अगर आपको कुछ प्रेरणा की कमी हो, तो अपना कोई ना कोई आइडियल क्रिएट कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, और उस आइडियल को अपग्रेड करते रहिए। जैसे मैं विद्यार्थी की बात करता हूँ, जी। मान लीजिए हम क्लास से शुरू कर लेते हैं। आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 50-60 स्टूडेंट हो गए, 70 जी। स्टूडेंट हो गए, तो मैं वहाँ विद्यार्थी हूँ, तो मुझे देखना चाहिए हु इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट स्टूडेंट जो मेरी नज़र में बेस्ट है, जिस एंगल से मैं सोचना चाहता हूँ। पर अगर मुझे बताना हो, तो मैं कहूँगा भी वो विद्यार्थी जो हर फील्ड में आगे है, जिसको आप हर तरह से अच्छा समझते हो, चाहे वो पढ़ाई है, ग्रेड है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, और ड्रेसिंग अप है, उसका आचरण है, उसका टीचर्स के साथ बिहेवियर है, अपने साथियों के साथ बिहेवियर है, तो ऐसा व्यक्ति है, उसको आप आइडियल बना दीजिए। फिर जब आप अगली क्लास में जाते हैं, या किसी और उससे अच्छे विद्यार्थी को मिलते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हैं, तो अपने विभाग के बारे में सोचते हैं, तो विभाग का सबसे अच्छा है, उस जैसा होने की कोशिश करिए। फिर जब यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी का बेस्ट स्टूडेंट आप देखें, उससे अच्छा होने की कोशिश करें। तो ये आइडियल को अपग्रेड करते जाइए, अपने आप को चैलेंज करते जाइए। लोग अपने आप को चैलेंज नहीं करते, हम बड़ी जल्दी कह देते हैं कि जी मैं तो आई एम डन, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। हालांकि हमने अपनी लिमिट तो देखी नहीं कभी किसी ने। साइंस सेज दैट nobody uses more than 3 to 5% of its brain throughout our life. इसे ज़्यादा हम यूज़ ही नहीं करते। बिल्कुल। तो उसको यूज़ करना चाहिए, हमें अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। और अगर हम चैलेंज करते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपना आइडियल क्रिएट कर लें, तो एक स्टेज आती है जिसमें फिर आप यू स्टार्ट लाइकिंग योरसेल्फ। ये बहुत बारीक बात है कि हम, अब लोग कहते हैं जी मैं तो अपने आप को शीशे में देखता हूँ तो मैं लाइक करता हूँ। हर बंदा अपने आप को लाइक करता है, करना भी चाहिए, व्हाई नॉट। लेकिन दैट लाइकिंग इज दैट व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद समबडी, whosoever, you feel that I'm not bad, number one. Number two, when you look back in your life, you look back with satisfaction. नहीं तो आमतौर पे क्या होता है कि हम जब पीछे देखते हैं, यार मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता, शायद मैं इससे बेटर करता, जी। मैं उस वक्त मैंने ये गलती ना की होती। हम करते हैं गलतियाँ, अक्सर। लेकिन वो इतनी बड़ी गलती ना हो कि आज मैं उस स्थिति में नहीं हूँ जहाँ मैं पहुँच सकता था।
तो विद्यार्थी के लिए जो एथिक्स हैं वो कुछ तो ये बुनियादी हैं, लेकिन अदरवाइज मैं समझता हूँ कि उसको सीखते चले जाना चाहिए। बिल्कुल। हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। जी सर। सर ये सब तो बात हुई स्टूडेंट एथिक्स के बारे में, जिस बारे में बात करके आपसे बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ मुझे एज ए स्टूडेंट सीखने को मिला। एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी यूनिवर्सिटी के बारे में, कि आप इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं, सो आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर क्या विजन है? ये तो हम जानते हैं कि माका ट्रॉफी अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आई है, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है पूरे इंडिया की जिसने माका ट्रॉफी को घर लाया है। तो उस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी जो है इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू हैव ए पर्सन लाइक शास्त्राम सिंह संधू जी एज चांसलर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण है, इसलिए नहीं कि वो चांसलर है, हर यूनिवर्सिटी का चांसलर तो होता है, लेकिन जब मुझे ये इस बात का गर्व है कि आई एम दी फाउंडर वाइस चांसलर, और मैं यूनिवर्सिटी के साथ यूनिवर्सिटी बनने से पहले से जुड़ गया, तो मुझे बुलाया चांसलर साहब ने। अब जब उनकी पहली स्टेटमेंट थी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने कभी सुनी नहीं होगी, कोई व्यक्ति ऐसी बात करता नहीं है। जी। वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब, व्हेन वी स्टार्ट दिस यूनिवर्सिटी पीपल आर गोइंग टू आस्क व्हाई अनदर यूनिवर्सिटी, देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी। तो मैंने कहा सर देयर इज ए नीड फॉर अनदर यूनिवर्सिटी। तो वो कहने लगे कैसे? तो मैंने कहा देयर इज ए नीड फॉर ए यूनिवर्सिटी विद ए डिफरेंस। अब वो डिफरेंस क्या होगा, इस पे डिस्कशन हुआ 4.5 घंटे। ओके। और उस डिफरेंस में सबसे पहली बात ये आई कि दिस विल बी ए यूनिवर्सिटी फॉर द स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई वी कॉल आवरसेल्व्स स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एस्पिरेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ द मॉडर्न स्टूडेंट। मेरे ज़माने में एस्पिरेशंस और हुआ करती थी, आज के ज़माने में एस्पिरेशंस और हैं। बिल्कुल। सो पहली बात तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी ने कोशिश की राइट फ्रॉम डे वन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द एस्पिरेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे वो कैरियर्स हैं। आपको मालूम है हम सारे कैरियर ऑप्शन देते हैं। बिल्कुल। आप आईएएस बनना चाहो, आप आर्मी में जाना चाहो, आप बैंक में जाना चाहो, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहो, आप बाहर जाना चाहो, हायर स्टडी करना चाहो, कुछ भी। जी। कॉर्पोरेट वाली तो वी आर नोन फॉर दैट। या। दूसरी बात ये हुई कि हम पढ़ाएंगे क्या, तो उस पर चर्चा हुई। तो हम जब पढ़ाएंगे, जो करिकुलम बनाएंगे वो कंपेरेबल विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड होगा, कंपेरेबल विद द बेस्ट इन दिस कंट्री होगा, और उस पर स्टूडेंट्स की राय भी होगी, कॉर्पोरेट की राय भी होगी। और मैं आपको बहुत गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ, एंड आई चैलेंज एनीबडी हु कैन प्रूव मी रॉन्ग, कि कोई यूनिवर्सिटी उस वक्त तक कम से कम नहीं थी जो अपना करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त बच्चों को और इंडस्ट्री को शामिल करे। बिल्कुल। हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में आज भी बच्चे हैं, 2 बच्चे होते हैं, आपको मालूम है, एक लड़का एक लड़की, बेस्ट स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से कॉर्पोरेट के 2 एक्सपर्ट्स होते हैं। अब तीसरी बात ये हुई कि भाई हम करेंगे क्या, तो हमें बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट का मौका देना है। तो उसमें फिर स्पोर्ट्स आ गई, कल्चरल एक्टिविटीज़ आ गई, प्लेसमेंट सेल। सबसे पहले हमने डिपार्टमेंट ऑफ कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बनाया। उस वक्त कैरियर डेवलपमेंट होता था, बाद में प्लानिंग वर्ड ऐड किया, क्योंकि उस वक्त हम उनको 5वें सेमेस्टर में ट्रेनिंग देते थे, लेकिन अब तो 3rd सेमेस्टर से शुरू हो जाता है आपका काम। जी। वहाँ से प्लानिंग होती है, तो पहले प्लानिंग नहीं होती थी, पहले केवल उनको ट्रेन किया जाता था। तो अब प्लानिंग करके फिर ट्रेन करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी यहाँ तक पहुँची है, तो ये विजन था वो बिल्कुल। हमारे वाइस चांसलर का। और सभी, मैं बच्चों का और उनके माता पिता का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि उन्होंने जो हमने दिशा निर्देश दिए उसको माना। पहले तो यूनिवर्सिटी को चुना, विश्वास किया इतना यूनिवर्सिटी पे, तो वो हमारी जिम्मेदारी हो गई। तो जो हमने स्लोगन दिए यूनिवर्सिटी को, पहले दिन पहला स्लोगन था कि फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सो ये हर बच्चे की लाइफ में होना चाहिए। आई विश ऑल स्टूडेंट्स व्हेन दे जॉइन ए यूनिवर्सिटी एटलीस्ट, तो पहले भी होना चाहिए, लेकिन अब तो ग्रोन अप है वो, तो ये अपने सामने रख लेना चाहिए कि आई शैल नॉट फेल इन एनीथिंग दैट आई अंडरटेक, दैट्स नॉट एन ऑप्शन। और उसके लिए ऑफ कोर्स वो जो मैंने सारे एथिक्स बनाए वो अपने पास रखे।
और दूसरा स्लोगन हमने दिया कि वी कैन नॉट बी नंबर 2। तो अब देख लीजिए हम नंबर 1 है हर चीज़ में, बिल्कुल यार। वी आर। और ये भी वही है कि हम नंबर 2। अब किसी ने मुझे पूछा जी नंबर 2 सारी यूनिवर्सिटी तो नंबर 1 नहीं हो सकती। तो मैंने कहा 2 इसमें मैं आपको आर्गुमेंट दूंगा। नंबर 1, हम नंबर 1 शुरू में थोड़े ही थे, बिल्कुल। लेकिन हम रुके नहीं। हमें नंबर 2 पोजीशन एक्सेप्टेबल नहीं थी, जी। हम लगातार मेहनत करते रहे। दूसरी बात ये होती है कि नंबर 1 के मान लीजिए 99 मार्क्स हैं, तो नंबर 2 तो 70 वाला भी हो सकता है, 60 वाला भी हो सकता है, कि लेकिन नंबर 2 98.99 वाला भी हो सकता है। तो अगर हम नंबर 2 भी होंगे तो हम क्रेडिबल नंबर 2 होंगे, ताकि अगले साल हम नंबर 1 पर पहुंच सकें। बिल्कुल। सो मेरा जो फ्यूचर विजन है अबाउट द यूनिवर्सिटी, एंड आई एम श्योर वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, या वो ये है कि और ज़्यादा अच्छे बच्चे और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बच्चे यहाँ पे आएँ। दे शुड टेक द एडवांटेज ऑफ world class facility that we have created. This is one. जी। Second is that we maintain our position Yes. in all areas where we are number 1, and keep on working hard where we are not number 1. जैसे एशियन QS एशिया रैंकिंग की बात करें तो 4 साल पहले हमारा रैंक 271 to 280 आया, 3 साल पहले 189 आया, और फिर 1 साल पहले 149 आया, 185 आया, फिर 149 आया, और इस बार 120 आया। तो नेक्स्ट ईयर आई विश दैट वी आर इन द फर्स्ट 100। या इसी तरह से यस QS वर्ल्ड जो है दिस ईयर वी आर इन आई थिंक 691 to 700। So I wish that next year we are somewhere between 500 and 600, and in the coming 2-3 years we are in the first 500. And all this will be possible because of our students and our teachers. बिल्कुल। And it has been possible because our students are following the ethics, majority of them. या And the result is our placements, the result is our students all over the world, and the result is our own happy faces. या We are happy and satisfied. बिल्कुल सर। And I'm so glad and proud of our students, proud of you too, everybody here. And I wish that we continue our journey, and when we look back in satisfaction. बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, इतना मोटिवेट करने के लिए, एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करने के Thank लिए। you so much. Thank और आपके जितने विजन्स है इस यूनिवर्सिटी को लेके, हम सब तो उस पर मेहनत कर ही रहे हैं। ये तो हम भी जानते हैं कि हमसे ज़्यादा दुगनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, बट वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम भी उतनी मेहनत कर सके और जल्दी हम आपके विजन्स को फुलफिल कर पाएँ। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत मज़ा आया। Thank you so much, and I'm sure my colleagues and students are going to keep on working hard बिल्कुल and keep on making themselves proud. बिल्कुल सर। Thank you so much. थैंक यू सो मच सर।